So hello everyone, welcome to this channel Statistica Hub. So today we are going to start with the second chapter in probability continuation. So that will be the random variable. Okay, so what is the idea for random variable? Can anybody give me some idea? It's a function whose domain is a sample space and its range is from -infinity to infinity. Oh, cool. So that is the good definition and that is the actual definition also. Okay, so before this particular chapter, if I go for random variable, you have discussed something about random experiment in the previous chapter. Okay, so random experiment, as I told, that a random experiment is that kind of experiment for which you are getting more than two outcomes, or maybe equal to two or more than two outcomes. And those proper outcomes that you may be getting are well known to you before the experiment. But if you go for a particular trial of that experiment, you don't know what can be the possible outcome. So that is the definition of random experiment. So once you get the random experiment, you got the sample space. Okay, now, what to do with this particular sample space? So to make use of this sample space, you got the concept of random variable. And practically, if you go for any population, maybe the population of maybe car sale, maybe the population of people who are suffering from TB, maybe any kind of population that can be there. So for every population, you define a random variable that basically describe how the population will look like. Okay, so someone give me the idea that, okay, random variable is basically a function, and we know for a function, you must define its domain. Okay, so a function take up a point from the domain and it goes to the range. So these two things, either the domain and the, not either, both the domain and the range, they must be defined for a particular function. Okay, so someone gave me the domain will be the sample space and range will be the like any number from like -infinity to infinity. So technically I can say that is a real number. Okay, so now let's have a discussion like what is the idea of real number versus complex number? Any idea? Anything that you want to add? Any number which doesn't contain the root of negative is known as real number. Okay, cool. So you got that. Okay, if you are getting something like -1, then that will coming under the class of complex number. Okay, so basically if I say that this 5 number that is greater than 3, so this is something that is very important. You can just write it down, or maybe you can just understand like, okay, how the things are coming up. So you may have taken up maybe in the graduation level two different courses, the real analysis and the complex analysis. Okay, so if I go for the like complex analysis and real analysis. Okay, so in real analysis, there is a concept of comparative. So do you understand what is the meaning of comparative? We can say comparison. Simple word. Any idea like comparison? Comparison basically means to say the thing that as well I was writing, that 5 will be greater than 3. Or I can say maybe 2 is less than 3. So these kind of things that you are going to compare some numbers. So basically real analysis is a particular analysis in which we can go for comparison. So basically real analysis is based on comparative theory. Does that make sense? Hello. Yes, sir. Okay. Now if I go for the complex number, you can't compare. Like if I go for x plus iota y, so I can say maybe the number 2 plus 3 iota, or maybe I can go for like 3 iota plus 5. Okay, so these are two different numbers. I can change maybe 4 iota plus 5. So can you set up some relation like this one, some inequality? No. No. So why? Why so? These are not comparable. Yeah, great. Okay, so we are having two different things. One is the real number, one is the complex number. So for real number, we go for real analysis. For complex number, we go for complex analysis. In real analysis, we consider that, okay, this is based on comparative theory, but complex numbers are not comparable. Okay, so that is something that you can just consider to be like a basic assumption, or can say some basic fruitful thing that you can pen down. Okay,
So we have to discuss something about real number. So you got like, okay, real number something, something, something. Okay. So you got that, okay, a random variable is nothing. It is just a function that is from the sample space to the real line. Any doubt in this one? The basic definition. Hello. No. If you guys want, I can switch to Hindi. Hello. There are roughly 6 to 7 people. So try to be interactive. Yes, we are Hindi with Okay. Okay, sir. Okay, so how to just introduce the concept of random variable? So just take up the basics, very basic thing. So initially we are having the Bernoulli random variable. So can anybody define what is Bernoulli random variable? So its range is 0 and 1. Okay. So how do you define a Bernoulli random variable? Okay, before that thing, let's have a discussion on one more thing. So we are having two kind of random variables. So first one I can say discrete random variable. The other one will be the continuous random variable. Okay, so what is the difference between these two? Anything that you want to add, like for a discrete case or maybe for the continuous case? No response. अरे भाई डिस्क्रीट केस और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये दो अलग अलग चीजें हैं. इनके बीच में कुछ भी एक या दो चीज जो तुम ऐड ऑन करना चाहो. फिर डिस्क्रीट भैया ये होता है, कंटिन्यूस ये होता है, कुछ भी कमेंट. देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तुम उसको पढ़ोगे, वो तो मेरे से बहुत अच्छा अच्छा बहुत जगह पे लिखा हुआ होगा, तो तुम बोलोगे तभी तो तुमको समझ आएगा कि लिखा क्यों गया था वो. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तुम्हें एग्जांपल तो पता ही होगा, बर्नौली हो गया, बाइनोमियल पॉइसन, ये सब हो गए, ये डिस्क्रीट हो गए. कॉन्टिन्यूस में तुमने पढ़ा नॉर्मल सबसे ऊपर. तो ये चीजें हैं. तो ये सब कैसे आ रहे हैं कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल को? हेलो. सर कॉन्टिन्यूस में एक्स की वैल्यूज रेंज में डिफाइंड होती है, डिस्क्रीट में रेंज नहीं होती है, एक सेट की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो किसी ने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया सेट. ठीक है, तो सेट ठीक है. ओके, सो बेसिकली हमारे पास रेंज होगी, कोई सेट होगा. ओके, तो हमारे पास दो तरह के सेट होते हैं मेजरली. सबसे पहले अगर मैं ले लूं काउंटेबल सेट, और दूसरा सेट जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल सेट. ओके, अब इनको समझने के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि मान लो मैं सबसे पहले कोई सेट डिफाइन करता हूं. मान लेते हैं S1 सेट है मेरे पास, एंड दैट सेट इज रफली वी आर सेइंग मे बी नंबर 1 4 5. ओके, S2 फिर हमने डिफाइन किया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेवर एंडिंग. फिर मैंने S3 डिफाइन किया, उसको ले लेते हैं मे बी फ्रॉम 1 to 4. तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरवल. तो इनमें से काउंटेबल सेट कौन सा है और अनकाउंटेबल सेट कौन सा है? एनी आंसर? सर पहले दो काउंटेबल है. पहले दो काउंटेबल है. ठीक है, कैसे कंक्लूड किया तुमने ये? सर हम करस्पॉन्डेंस देख सकते हैं, 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 4 है, 3 के साथ 5 है, हाँ ओके. सो ऑन. काउंटिंग नंबर तो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था कहीं ना कहीं पे. नेचुरल नंबर का क्या काम था? दूसरा नाम उसका यही था, काउंटिंग नंबर. तो बेसिकली वो नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हो. तो अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करूं 1 2 3, या सो आई एम एबल टू काउंट देम. ओके, दूसरे सेट के अंदर जाऊं तो 1 2 3 4,
I am able to count but not finitely. So this is a finitely countable set, and this is infinitely countable set. किसी को इसमें कुछ डाउट? नो सर। हेलो, ठीक है। उसके बाद मैंने सेट 3 जो डिफाइन किया S3, उसको मैंने लिखा कि ये भैया एक इंटरवल है फ्रॉम 1 to 4। तो यहाँ पे अब तुम काउंट नहीं कर सकते, तो मैं काउंटिंग सेट को लेके आता हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 से, कि ठीक है 1 से स्टार्ट किया तो 1 को पोजीशन 1 पे रख दिया। उसके बाद कोई मुझे सेकंड नंबर बताए, तो कोई बोल देगा भैया सेकंड नंबर हो सकता था 4 था, नहीं मैं उसको एक और नंबर दे दूंगा कि ना 3 था मेरे पास। तो कोई बोलेगा कि चलो 3 भी नहीं है सेकंड नंबर, हमारे पास हो सकता था 2 होता, वो है सेकंड नंबर। उसके बाद कोई और आएगा कि भैया 2 नहीं है 1.5 है। तो ये जो लूप हमारे पास बनता जा रहा है कि एक और नंबर ढूंढ देना, एक और नंबर ढूंढ देना, ये कभी भी एंड होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरवल एक कॉन्टिन्यूस केस था। यहाँ पे 1 से लेके 3 तक सारे ही नंबर है जो भी इन बिटवीन होंगे, तो 0 0 0 ऐसा कुछ भी नंबर जाएगा 1, सो वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि इसको मैं 1 के अंदर ऐड करना स्टार्ट करूँ तो तुम फर्स्ट पोजीशन तो डिफाइन कर दोगे, लेकिन जैसे काउंटिंग को आगे बढ़ाओगे कि मैं 2 पे लेके गया कि काउंटिंग नंबर 2 पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे ये सेट हमारा अनकाउंटेबल है। तो अगर कोई रैंडम वेरिएबल था जिसको हमने अभी देखा कि डोमेन सैंपल स्पेस थी, रेंज रियल लाइन थी, तो अगर किसी रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है, अगर वो रेंज हमारे पास काउंटेबल सेट बन रही है, दिस वन, देन वी विल कंक्लूड कि हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। और अगर हमारी रेंज है वो अगर अनकाउंटेबल सेट बन गई है, तो हम उसको बोलेंगे कि भैया ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। समझ में आया? यस सर। ओके, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमने रैंडम वेरिएबल देखा कि ये एक फंक्शन होता है सैंपल स्पेस से रियल लाइन पे। रियल लाइन मतलब जितने भी हमारे पास रियल नंबर हो सकते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है। फिर रियल के ऊपर थोड़ा बात किया था कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग चीजें होती है। रियल नंबर्स जो है, रियल एनालिसिस जो है वो कंपैरेटिव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो कंपैरेटिव थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देता है या फिर उसको होल्ड नहीं कर पाता है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि भैया डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, तो उसके लिए हमने समझा कि सेट थ्योरी में गए, तो काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट देखा। तो काउंटेबल सेट क्या था कि वो सेट जिसके एलिमेंट्स को तुम काउंट कर पाओ, या तो फाइनाइटली या फिर इनफाइनाइटली। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जहाँ पे सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारे जो फंक्शन था, जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो एक फंक्शन था उसकी एक रेंज आ रही थी, अगर उसकी रेंज थी वो काउंटेबल सेट है तो हम उसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर वो अनकाउंटेबल है तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? सब बेसिक बेसिक चीजें था, किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, नो वे। अब चलते हैं, इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था, मान लो कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल था, वो एक फंक्शन है, हमें पता है वो सैंपल स्पेस से रियल लाइन के ऊपर गया, ठीक है। तो जब हम y इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे, तो हम लिखते थे कि भैया मेरे पास y है ना, वो फंक्शन है x का। तो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक डोमेन होती थी, तो ये हमारा x होता था, इसको मैं डोमेन बोल देता हूँ। फिर मेरे पास एक मतलब एक मशीनरी समझ सकते हैं हम इसको, कि डोमेन का एक पॉइंट आया, वो एक मशीन के अंदर गया। मशीन यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन ही है, ठीक है, फंक्शन के अंदर हो गया। उसके बाद मेरे पास जो निकल के आया, बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास आया, वो होगा मेरा y, और जिसको हम रेंज बोलते हैं कि हाँ भैया ये y आ गया। तो ऐसे कुछ फंक्शन काम करता था, तो यहाँ पे भी वो कुछ ऐसे ही करेगा। तो तुमने जब बुक में पढ़ा होगा तो हमने लिखा है x इज ए रैंडम वेरिएबल, सबने देखा होगा। कोई भी बुक उठाओगे तो वहां पे x रैंडम वेरिएबल, जितनी मतलब बेसिक लेवल हम देखते हैं वहां पे, कोई हायर बुक देखोगे तो वहां पे और प्रॉपर वे में डिफाइन करके दे सकते, ठीक है। तो ये नोटेशन सबने देखी है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे हम x जब लिख रहे हैं, तो ये x बेसिकली f को नहीं लिख रहे, पूरे fx को x लिख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज समझनी है सबसे पहले तो। सो बेसिकली हमारा जो y है उसको हम x लिखते हैं यहाँ पे, जब रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे होते तो। सो पीछे क्या काम चल रहा होगा इसके केस में, तो हमारे पास x होगा, फिर यहाँ पे एक w, जो कि w हमारा सैंपल स्पेस से आएगा, एंड दिस विल कमिंग आउट टू बी अ रियल नंबर। ये हमारा प्रॉपर रैंडम वेरिएबल है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा देखूं, तो अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंट था तो उसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा। तो मान लो टॉसिंग अप ए कॉइन, ठीक है। तो कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड या फिर टेल?
ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ा सा आगे और मैं चलूं तो मैं बोल देता हूँ कि भैया देखो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया x, that is a random variable and it is a function, and I define this to be like, okay, it count number of head. ओके, तो x के अंदर अब क्या होगा, डोमेन के पॉइंट आएंगे, सो x ऑफ ओमेगा that will be some real number. Okay, so x of head that will be coming out to be 1, x of tail that will be 0. ये चीज सभी को समझ में है कि फंक्शन काम कैसे किया, कि कैसे हमें रैंडम वेरिएबल निकल गया। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे रहा होगा। तो इस केस में मेरे को दिख रहा है कि मान लो कॉइन मेरे पास अनबायस्ड था, तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, ये भी होगी 1/2। ओके, इसके रेस्पेक्ट में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एमसीक्यू प्रॉब्लम था कोई। उस एमसीक्यू प्रॉब्लम के अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे, मान लो ए, बी, सी और डी। ठीक है, फिर x मैंने बोला कि x मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है, तो अगेन मुझे इसको डिफाइन करना होगा कि x क्या चीज दे रहा है मेरे को। तो x बेसिकली सेज योर स्कोर। ओके, और हम मार्क कर लेते हैं कि भैया जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। बट अज्यूम करते हैं तुम मेरी तरह बिल्कुल नहीं पढ़ के गए, खाली हाथ पेपर लेके चले गए, तो तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे कि ए बी सी डी में से तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो तुमने डाला डोमेन का पहला पॉइंट ए, ओके, सो विल बी गेटिंग द स्कोर 0। तुमने अगला पॉइंट डाला x ऑफ b, यू विल बी गेटिंग ए वैल्यू 1, x of c that will be 0 and x of d that will also be 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या हुआ कि x जो रैंडम वेरिएबल था उसने दो ही वैल्यू ली, either a 1 or a 0, but in this case the probability of 1 that is like 1/4 and this will be 3/4। तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है वो कुछ ऐसे ऐसे काम करता है। उसका प्रोसीजर कुछ ये होता है कि हाँ, पीछे सैंपल स्पेस था, रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करने के लिए डोमेन के पॉइंट को लेके आएगा और उसका एक आउटपुट देगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये बस मोटा मोटा इसके ऊपर का जितना भी अपने पास था कि जिसको हम समझ सकते थे, एक आइडिया ले सकते थे कि रैंडम वेरिएबल कैसे काम करेगा, वो हमने देख लिया। ठीक है, अभी इसके साथ ही अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूंगी, तुम्हारे पास दो कॉइन थे। ओके, तुमने इनको टॉस किया और x मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि भैया ये काउंट कर रहा है लाइक नंबर ऑफ हेड। तो जल्दी से मेरे को x की पॉसिबल वैल्यूज और उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बताओ। 210। ओके, किसी ने बोला 2 1 0, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ओके, 1 की हाफ। हाफ एंड 0 की 1/4। ओके फाइन। ओके, तो समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें बस डोमेन पॉइंट्स को एक फंक्शन के अंदर इनपुट कर देना है कि हमें एक आउटपुट मिल जाए। ओके, यस। ठीक है, तो ये आइडिया मिल गया है। उसके बाद हमारे पास, तुम्हारे पास दो तुमने रैंडम वेरिएबल देखे कि मेरे पास कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। अब तुम्हारे पास एक मिक्स रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है। तो मिक्स रैंडम वेरिएबल क्या होता है? मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, एनी आइडिया? मिक्स रैंडम वेरिएबल, अरे मिक्स का मतलब क्या होता है एकदम सिंपल तरीके से? मिक्स का मतलब चीजें मिक्स कर देना, ऐड ऑन कर देना, मतलब दो अलग अलग चीजें थी उनको एक साथ मिला दिया, मिक्स हो गया, सिंपल। मम्मी से जाके बोलो मम्मी मिक्स का मतलब क्या होता है, तो मम्मी मिक्स कर देगी, देखो मैं रोटी बना रही हूँ तो बेटा आटा था, पानी था, नमक था, सब मिलाया तो आटा गूंद लिया। तो एक मिक्सचर है ना किसी चीज का, एकदम उसी फॉर्मेट पे रखो, एकदम सिंपल, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वही है स्टेट्स। वो रैंडम वेरिएबल जिसका रेंज कंटीन्यूअस भी हो और साथ ही साथ डिस्क्रीट भी हो। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो अलग अलग चीजें थी, एक है डिस्क्रीट केस, एक है कंटिन्यूअस केस, तुमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो बेसिकली इसका और इसका यूनियन ले लिया, सिंपल। तो बेसिकली वो रैंडम वेरिएबल, a random variable whose range is union of countable set and an uncountable set।
सिंपल। Yes. इसमें किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक अप सम एग्जाम्पल. So say x is some random variable that is coming up from like sample space to R. Okay, मैं x को ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि कोई भी डोमेन का पॉइंट अगर वो मेरे पास ये 1 ले लेगा, अगर इसकी मैं सैंपल स्पेस भी ले लेता हूँ कि इसका कोई सैंपल स्पेस था लाइक 0 से लेके 3 तक, like any number, maybe some number that is in this particular interval. ओके, ये इसका सैंपल स्पेस था. ठीक है, फिर मैंने बोला कि मेरे पास जो W था वो कहीं से भी आ रहा था, तो ये वैल्यू ले रहा है 1 अगर मेरे पास 0 लेस देन इक्वल टू W और लेस देन इक्वल टू 1 है तो. ओके, उसके बाद मैं वैल्यू दे देता हूँ कि 2, उसके बाद 3 दे देते हैं कुछ भी, और बोल देता हूँ इसको कि भैया मेरे पास यहाँ पे है 1 लेस देन W लेस देन इक्वल टू 2, उसके बाद है मेरे पास एक और चीज 2 लेस देन W लेस देन इक्वल टू 3. ठीक है, ये पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन किया. तो ये कौन सा रैंडम वेरिएबल, पहले तो इसका आंसर बताओ. क्या ये कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट है या फिर मिक्स? डिस्क्रीट है. ये डिस्क्रीट है. ठीक है, क्योंकि मेरे पास डोमेन के पॉइंट थे, हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसकी पर्टिकुलर 3 डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके, तो ये किसका एग्जांपल हो गया कि मेरे पास जो सैंपल स्पेस था, इस सैंपल स्पेस जो हमारे पास था दैट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड यू डिफाइंड ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑन ए कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस. ओके, नोट इट डाउन. सो वी कैन डिफाइन a discrete random variable on continuous sample space. तभी इस पे वैलिड है, मतलब एग्री करेंगे जो भी मैंने लिखा कि तुम एक कंटिन्यूस सैंपल स्पेस के ऊपर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो. ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास S जो था, सैंपल स्पेस जो था, अगर वो डिस्क्रीट था. जब सैंपल स्पेस डिस्क्रीट होता है देन यू कैन नॉट डिफाइन ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. तो ये 2 पॉइंट याद कर लो पहले तो, कि तुम्हारे पास अगर सैंपल स्पेस डिस्क्रीट था तो उसके केस में तुम सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जनरेट कर सकते हो. लेकिन अगर तुम्हारा सैंपल स्पेस जो था वो कॉन्टिन्यूस था तो उस केस में तुम कॉन्टिन्यूस भी और डिस्क्रीट भी दोनों तरह के रैंडम वेरिएबल जनरेट कर सकते हो. ओके, कोई दिक्कत इसमें? Yes, sir. No. ठीक है, इसको नोट डाउन करो और इसको याद भी कर लो. उसके बाद एक और रैंडम वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ कि भैया मेरे पास XW था, वो मैंने कुछ ऐसे डिफाइन किया कि वो अपनी वैल्यू ले रहा था 1, फिर वैल्यू ले रहा था मे बी 2, उसके बाद वो ले रहा था कि मे बी 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मे बी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी फंक्शन बना दो. ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू W लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे देते हैं 1 लेस देन 2 और सेम रख देते हैं 2 लेस देन W. अब इसको बताओ ये वाला कौन सा केस है, क्या ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस? सर दोनों है. ये दोनों है. ठीक है, क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, डिस्क्रीट पॉइंट आ रहे हैं और जैसे 2 से आगे का पॉइंट ले रहा हूँ इन बिटवीन 2 या 3, तो वहां पे मेरे पास क्या हो गया कि एक रेंज आ गई. सो बेसिकली मेरे पास यूनियन ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस है यहाँ पे. तो ये बेसिकली मिक्स रैंडम वेरिएबल. तो तुम्हारे एग्जाम में इनमें से कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में ये वाला आएगा. ठीक है, समझ में आया सभी को कि ये हुआ क्या, कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल इस फॉर्मेट पे डिफाइन किया कि उसकी रेंज में डिस्क्रीट पॉइंट भी आ गए और एक रेंज भी आ गई. तो दैट विल बी बेसिकली यूनियन ऑफ टू पर्टिकुलर थिंग्स, वन इज अ डिस्क्रीट और द कॉन्टिन्यूस दिस काउंटेबल सेट एंड वन इज अनकाउंटेबल सेट. ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं ना किसी को भी? नो सर. तो ये यहाँ से क्या है कि हमारे पास अगर सैंपल स्पेस डिस्क्रीट होता तो तुम कॉन्टेंट्स डिफाइन ही नहीं कर पाते. तो अगर तुम सैंपल स्पेस को डिस्क्रीट ले लोगे तो तुम मिक्स रैंडम वेरिएबल जनरेट नहीं कर सकते. तो तुम्हारा सैंपल स्पेस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी तुम मिक्स रैंडम वेरिएबल जनरेट कर पाओगे. ठीक है, नो इश्यू इन दिस वन. यस सर. ओके, इसके आगे चलते हैं. आप एक छोटा सा पॉइंट और लिखो कि मेरे पास अगर कोई रैंडम वेरिएबल था, एक एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल. ओके, और मेरे पास एक g फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ ना. g इज ए फंक्शन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. मान लो एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल था या फिर कॉन्टिन्यूस फंक्शन था. ओके, देन if you apply this function on the previous random variable, so that will be gx. Now this will also be a random variable. Remember this point.
Now the second point, that is like, okay, if x is a random variable and we are given some g dot that is a function, and this is some sort of like, okay, let's take this to be like monotonic function, then also you will get g of x that will be a random variable. तो हर फंक्शन रैंडम वेरिएबल नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ही रैंडम वेरिएबल होता है, इस बात का बस यही मीनिंग। समझ में आया? यस सर। समझने का इतना था नहीं, बस इसको मतलब याद कर लो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देता हूँ, न्यूमेरिकल भी नहीं है ऐसा, मैं बोल रहा हूँ कि x मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है, ओके, और मैंने बोला कि gx है, दिस इज नॉट ए रैंडम वेरिएबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ओके, स्टेटमेंट ये है कि x रैंडम वेरिएबल था, gx इज नॉट ए रैंडम वेरिएबल, तो नीचे 4 ऑप्शन दे रहा हूँ कि इनमें से कौन सी बात पक्का ही सही होनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज सेइंग g may not be continuous। ओके, सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं कि g may not be monotonic। ओके, थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं हमारे पास कि g is not invertible, और डी ले लेते हैं g is not continuous। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? मतलब 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी बात के साथ मस्ट लगेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? डी। ऑप्शन बी, G is not invertible। डी डी डी। किसी ने अभी डी बोला, तो उसका जस्टिफिकेशन? क्योंकि सर अगर वो कंटिन्यूअस होता तो gx भी रैंडम वेरिएबल होता। ओके ओके ओके, इसका डी ऑप्शन होगा। देखो, इसके लिए एक छोटा सा तरीका है, मैथ्स में तुम्हारे पास शायद लॉजिक का एक चैप्टर होता है, कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है? हेलो, कोई भी मैथमेटिक्स है? अरे टफ सवाल नहीं है, बस हाँ या ना। नो सर। ओके, सिंपल जवाब ये तो। ओके, तो हमारे पास एक चीज होती है, अगर मैं लिखूं कि P implies Q, that does not imply कि Q implies P, but if P implies Q, then negation of Q will imply negation of P। You understand negation? Not Q implies not P। बस इस स्टेटमेंट को याद रखो। तो यहाँ पे मेरे पास था कि अगर मेरे पास ये फंक्शन था, g फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस था, so g फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन implies random variable, so not random variable will imply not continuous random variable, continuous basically। तो उसलिए हमारे पास d आ गया। ठीक है, समझ में आया? Yes। ओके, सो सब इजी था अभी तक? किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके, तो चलो एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लो, उसके अलावा तो फिर अगली क्लास में थोड़ा डिटेल में इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो चलो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं कि तुम्हारे पास सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, कि तुम्हारे पास एग्जांपल है कि मेरे पास टॉसिंग करने के लिए 3 कॉइन थे, तो टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, x बेसिकली काउंट नंबर ऑफ हेड, तो गिव मी द वैल्यू ऑफ x एंड रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। 3210। 3210, what are the probabilities? 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। कूल, सो इजी चीज है। ओके, तो जब भी तुम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करोगे, 2-3 चीजें और याद रख लो कि अगर मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है, उसकी कोई रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, तो x1 so on xn, तो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी होंगी, दैट px that will be like p of x1 and so on p of xn। अब एक रूल होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1, सो समेशन ऑफ p x I, like I running from 1 to n whatever is n, so that will be coming out to be 1। ओके, अब प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टी थी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी रैंडम वेरिएबल की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालोगे, दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव,
That means to say it can be 0 but it can't be negative. ओके चलो एक प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल लिखा है मेरे सामने, वही तुम ट्राई करो। तो न्यूमेरिकल है 2 cards are drawn, ओके 2 cards are drawn successfully successively, no sorry, successively, okay, with replacement from a deck of 52 cards. Now find the probability distribution of ace. ये वाला ट्राई करो, ये एक रैंडम वेरिएबल है, समझ में आया सभी को? नंबर ऑफ एस बेसिकली तुम्हें नंबर ऑफ एस देखना है, जब तुम 2 कार्ड निकाल रहे हो डेक से तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एस की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस है, तो क्या हो सकता था एक भी एस ना आया, हो सकता था एक आया हो सकता था 2 आया, तो एक्स तो ये हो गया। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है मेरे को, जल्दी से प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या इसके बारे में सोच पा रहे हो? ये सर सॉल्व कर रहा हूँ। राइट ऑन। सर 0 की प्रोबेबिलिटी 2256 अपॉन 2652। Okay, so how did you calculate 48 into 48 divided by 52 into 52? Yep. Okay, तो एक्सप्लेन करोगे तुमने कैसे किया, so that बाकी लोग को भी समझ आए। पहले तो सर एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट टाइम 48 अपॉन 52। हाँ, और हमने एस को रिप्लेस कर दिया, फिर अगेन 48 अपॉन 52 so basically मल्टीप्लाई कर दिया वो क्या है? प्रोबेबिलिटी में। हाँ एकदम ठीक है। तो हमारे पास हुआ क्या है कि इन लोगों ने बोला कि देखो भाई अपने पास एक चीज है, तुम्हें जो करना था वो करना था कि तुम्हें 2 कार्ड निकालने थे और तुम्हें देखना था कि तुम्हारे पास एस कितने आ रहे थे। तो हो सकता था कि हमारे पास टोटल एस थे 4, हो सकता था एक भी ना आया, तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो सबसे पहली बार कार्ड निकला होगा वो नॉन एस निकला होगा। तो इसका मतलब 48 तरीके थे, क्योंकि 52 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48। ओके, सो दैट विल बी 48 डिवाइडेड बाय 52। अगला कार्ड निकाला वो भी सेम आना चाहिए, सो दैट विल बी 48 डिवाइडेड बाय 52। ओके, अब 1 के केस में जाएंगे तो हो सकता था तुम्हें पहले कार्ड पे एस आ गया, दूसरे कार्ड पे नॉन एस आया हो, या फिर दूसरा तरीका हो सकता था कि पहले कार्ड पे नॉन एस आया हो, दूसरे कार्ड पे तुम्हें एस आ गया हो। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एस आने की 4/52, इसकी 48/52, क्योंकि हम विद रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं। उससे आगे चलेंगे इस वाले केस में, तो इसकी हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 52, इसकी हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 52। ओके, तो इनको ऐड कर देंगे, ये 1 के लिए आ जाएगा। उसके लिए 2 की बात करें तो 2 पे भैया सिंपल हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52। सभी को समझ में आया? तो ये था विद रिप्लेसमेंट वाला। तो एज ए होमवर्क तुमको ट्राई करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, सिंपल, ठीक है। इसके बारे में सोचना है, एक और न्यूमेरिकल ट्राई कर लो। तो ये है मेरे पास कि तुम्हारे पास तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, नंबर ऑफ डबलेट्स। ओके, सो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ number of doubles, okay, in 3 throws of a pair of dice। इसको ट्राई करो कि तुम्हारे पास 2 पेयर थे डाइस के, तुमने उनको 3 बार थ्रो किया, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हो सकते हैं? तो अगेन सेम बात है, 3 बार थ्रो किया तो हो सकता था तुम्हें एक ही बार ना मिले, तो हो सकता था एक बार मिले, हो सकता था 2 बार, हो सकता था 3 बार। अब तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कि तुम्हें एक बार भी डबलेट नहीं मिला। तो ये कैसे होगा? तुम्हें डबल्स मिलने के कितने मतलब पॉसिबल केस कितने?
6. 6, ठीक है। तो डबल ना मिलने के कितने हो गए? 30। हम्म। ठीक है, सो दैट विल बी 30/36 रेज टू द पावर 3। ओके, अब 1 मिलने के लिए मतलब दो जगह पे तो 30 वाला केस रह जाएगा, सो 30/36 रेज टू द पावर 2 इनटू दैट विल बी 6/36 एक मिलने के लिए, और ये रिपीट कर सकता है, सो 3 टाइम हो जाएगा। ओके, इसके बाद 2 के लिए तुम्हारे पास सेम चीज यही रह जाएगी, सो 3 इंटू 6/36 रेज टू द पावर 2 इंटू 30/36। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर. ठीक है, तो ऐसे 3 को भी देखोगे तो वो सिंपल हो जाएगा, दैट विल बी 6/36 रेज टू द पावर 3। ओके, समझ में आया? यस सर. ठीक है, तो ये Yes, हमारे sir, पास रैंडम वेरिएबल के ऊपर एकदम बेसिक चीजें थी, बहुत थोड़ी चीजें थी। ओके, तो Yes, अभी sir. की क्लास में अभी तक जितना भी हमने कवर किया सभी को समझ में आया? एकदम बेसिक था आज की क्लास में, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। बेसिक नोटेशंस थी कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, कैसे डिफाइन होता है, उन सब चीजों के ऊपर बातें थी। ओके, Yes, sir. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।